नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों खासकर झारखंड में मॉब लिंचिंग का मसला अब अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुँच चुका है। एक रज़ाकाराना तंजीम ने इंसानी हुकूक कौंसिल की मीटिंग में यह मसला उठाया और कहा कि हिंदुस्तान में होने वाले इस वाक़े से हर कोई परेशान और फिक्रमंद है। झारखंड में 2 हफ्ते कबल तबरेज़ अंसारी नामी एक नौजवान का जय श्री राम बोलने से इनकार पर पीट कर कत्ल कर दिया गया। इसी दौरान मजलिस के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर सऊदी अवैसी ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि शाबाश सिंगियो, तुम्हारी गैर इंसानी हरकतों का जिक्र अब अक़वाम मुत्तहिदा में भी होने लगा है। देखो तुमने किस तरह भारत को बदनाम किया है। असद अवैसी ने कहा कि किसी ने सही सवाल किया कि मॉब लिंचिंग के जरिए और नफरत को परवान चढ़ाते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी किस तरह 5 ट्रिलियन का कारोबार कर सकेंगे। Center for Africa Development and Progress. The floor is yours. Thank you, Madam Vice President. India is a signatory to the ICCPR and the ICSGR. In the last couple of months, the Muslims in India have witnessed a rise in hate crimes against their community. In the last 5 years, there have been lynchings of Muslims and Dalits across India by fanatic Hindu mobs, ostensibly for the protection of the holy cow. Since April 2017, at least 10 Muslim men have been lynched in public in suspected hate crimes. The attacks have contributed to a growing sense of insecurity among Muslims and intensified religious tensions. The recent trend is to make Muslims chant Jai Shri Ram. 10 days ago, 24-year-old Tabrez Ansari was beaten for hours until he died at the hands of Hindu mob in the eastern state of Jharkhand for not chanting Jai Shri Ram. Recently, a Muslim teacher was attacked in a train for being Muslim. He was heckled to say Jai Shri Ram. When he refused, he was beaten and forced to get off the train. Member of Parliament Pratap Sarangi of the ruling party, in his first speech in the Parliament, asked why people who refuse to chant Hindu slogans should be allowed to live in India. These fanatic Hindu mobs have moved around with apparent impunity. The Indian state has remained mute to the cries of the minorities. We urge the UN to intervene and request India to follow the principles laid down in its own constitution. Thank you. पुरानी दिल्ली में इतवार की रात एक मंदिर पर हमले के खिलाफ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सैकड़ों कारकुनों ने आंध्रा बैंक कोठी के पास एहतजाजी मुजाहरा किया और इस वाक़े की मजम्मत की। कन्वीनर सिटी बजरंग दल चैतन्या ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ने इस वाक़े के सिलसिले में सिर्फ 4 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि CCTV कैमरों में कई अफराद की तस्वीर फिल्म बंद हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को ऐसे वाक़यात का यादगार न होने के लिए कड़े इक़दाम करने चाहिए। मंदिरों पर हमला हिंदुओं के लिए नाकाबिल बर्दाश्त होगा। जय श्री राम। నా పేరు చైతన్య, బజరంగ్ దళ్ సిటీ కో కన్వీనర్। ఈరోజు కోటి ఆంధ్ర బ్యాంక్ చౌరస్తాలో ఇస్లామిక్ ఉగ్రవాదులు మరియు వారి యొక్క చర్యను మేము ఖండిస్తూ ఆంధ్ర బ్యాంక్ చౌరస్తాలో దిష్టిబొమ్మ దానం చేయడం జరుగుతుంది। ఓల్డ్ ఢిల్లీ లోపల హిందూ దేవాలయాన్ని కొద్ది రోజుల క్రితం నుంచి టార్గెట్ చేసి వందలాది మంది హిందూ దేవాలయాల్లో అర్ధరాత్రి 1-2 గంటల సమయంలో 200-300 మంది వచ్చేసి మా యొక్క హిందూ దేవుళ్ళ విగ్రహాలను, వినాయకుడు, అమ్మవారు, శివుడి విగ్రహాలను కూలగొట్టి మరలా పోలీస్ స్టేషన్ ముందుకు వెళ్ళి వాళ్ళే ధర్నా చేయడం జరిగింది। కాబట్టి ఈ యొక్క ఇస్లామిక్ తీవ్రవాదులని మరి జిహాదీలని వెంటనే ఈ యొక్క గవర్నమెంట్ వాళ్ళందరినీ అరెస్ట్ చేసి కఠినంగా శిక్షించాలని మేము గవర్నమెంట్ డిమాండ్ చేస్తున్నాము। వందలాది మంది గుడి మీద దాడి చేస్తే ఈ రోజుకి కేవలం 4 అంటే 4నే వాళ్ళు పోలీసు వాళ్ళు అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ చేసినారు। ఒకవేళ ఇట్లాంటి సంఘటనలు మళ్ళీ ఎవరైనా చేయాలని ఆలోచించినా కానీ ఎక్కడైనా జరిగినా కానీ ఖచ్చితంగా బజరంగ్ దళ్ డైరెక్ట్ గ్రౌండ్లోకి దిగుతుంది, వాళ్ళకి సరైన సమాధానం చెప్తుంది, గుణపాఠం చెప్తుంది। బజరంగ్ దళ్ ఈ రోజు నుంచి పూర్తి స్థాయిలో అన్ని హిందూ దేవాలయాల రక్షణ కోసం పనిచేస్తుంది। ఎన్ని సీసీ కెమెరాలు ఉన్నా ఏమున్నా కానీ వాళ్ళు దాడి చేసిరు। అన్ని సీసీ కెమెరాల్లో కూడా వాళ్ళ దాడి దృశ్యాలు రికార్డ్ అయినప్పటికీ కూడా పోలీసులు కేవలం 4ని అరెస్ట్ చేసిరు। కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా అరెస్ట్ చేసి వీళ్ళని మీద కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని మేము కోరుతున్నాము। లేని ఆందోళనని మేము పెద్ద ఎత్తున ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని మేము నిర్వహిస్తామని మేము హెచ్చరిస్తున్నాము।
साइबराबाद पुलिस के साइबर क्राइम विंग ने 300 से ज्यादा लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाले एक नौजवान को गिरफ्तार कर लिया है। डिप्टी कमिश्नर पुलिस केसी राघवीर ने मीडिया को बताया कि विशाखापट्टनम का रहने वाला विनोद कुमार फेसबुक और सोशल मीडिया पर लड़कियों से दोस्ती करता और उनके एल्बम से तस्वीर चुराकर उनकी मॉर्फिंग करता। डेल कंपनी के एक सिक्योरिटी इंजीनियर की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज किया था। लड़की ने बताया कि उसने विनोद को अपनी नीम बनाना तस्वीर हटाने के लिए 40,000 रुपए दिए थे, लेकिन वो फिर भी उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। एक 10 दिन पहले हमारे पास एक लेडी ने आके साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैदराबाद सिटी पुलिस का एक कंप्लेंट दिया कि उसको कोई ब्लैकमेल कर रहा है। उनके फ़ोटोज़ और मॉर्फड फ़ोटोज़ पूरे पोर्न वेबसाइट्स में लगा के उनसे महीने को 10,000 डिलीट करूंगा बोल के महीने को 10,000 ले रहा बोल के कंप्लेंट करें। तो ये केस वॉज रजिस्टर्ड इन आवर PS। ये टीम बना के उसके अंदर हमने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो पता लगा कि वो विशाखापट्टनम का लड़का है। तो टीम इमीडिएटली विशाखापट्टनम गया और वहाँ पे एक विनोद कुमार बोल के एक पर्सन को अरेस्ट। 250 से 300 लड़कियों के डिफरेंट मॉर्फड फोटोग्राफ्स और डिफरेंट सोशल मीडिया में उनके लगाए सब फोटोग्राफ पूरा उसके अंदर से मिला। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने में ये पता लगा कि यही बंदा क्या करता है, ट्रू कॉलर्स और डिफरेंट सोशल मीडिया से औरतों का नंबर, औरतों का फोटोज़ पूरा लेके ये खुद उनका मॉर्फड फोटोज़ करके बना के वेरियस पोर्न वेबसाइट वहाँ पे पूरा फोटोज़ लगाता है। और 1 वीक 10 डेज़ के बाद उनको कॉल करके आपका फोटोग्राफ्स मैंने देखा उधर है, मैं डेल कंपनी में काम करता हूँ, आप मेरे को 10,000 रुपये दीजिए, पूरे आपके गंदे फोटोग्राफ जहाँ जहाँ मैं पूरा डिलीट कर दूंगा बोल के उनसे पैसा लेता है। तो ये खुद ही फोटोज़ लगाता है और खुद ही उनसे पैसा लेके डिलीट करता है। तो दिस वाज ए केस एंड उसको अभी अरेस्ट किया गया। उसका फ़ोन चेक करने से बहुत टेक्निकल नॉलेज इसको बहुत आ गया। इसको कहाँ से आया पूछने से वो बोलता है यूट्यूब में से इसने पूरा सीखा है और ही वाज कंटिन्यूइंग टू डू दिस टाइप ऑफ ऑफेंसेस। और अभी उसको अरेस्ट करके हम हैदराबाद लेके आके अभी रिमांड भेजे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो हम लोग जनरली पब्लिक को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ भी मत शेयर कीजिए, अपना फोटोज़ किसी के साथ भी मत शेयर कीजिए। और सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में सिक्योरिटी सेटिंग्स अच्छा है, जहाँ पे आपके फोटोग्राफ और इन्फॉर्मेशन बाहर वालों को नहीं दिखेगा, वो सेटिंग्स यूज़ कीजिए और अपना सेफ सर्फिंग कीजिए। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप नामपल्ली के स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के वासुदेव राव ने मां को मारपीट करने और उसकी किफालत करने से इनकार करने वाले एक 24 साल नौजवान मोहम्मद अफरोज को 2 माह की कैद की सजा सुनाई। अफजल सागर मल्लेपल्ली के रहने वाली फातिमा बेगम ने पुलिस हबीबनगर में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनका बेटा जो नशे और मंशियात का आदी है उन्हें और उनकी बेटी को ज़दोकब करता है और घर की जरूरियात के लिए पैसा तक नहीं देता। सब इंस्पेक्टर जी विवेकानंद ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात की और चार्जशीट पेश की थी। हजरत सैयद निजामुद्दीन जिलानी उर्फ हकीम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के 321वें सालाना उर्स शरीफ की तकारीब का कल से आगाज हो गया, जो 5 जुलाई तक जारी रहेंगी। हस्ब साबिक मोहम्मद अब्दुर्रहमान खालिदी के मकान से संदल का जुलूस निकाला गया। जानशीन व मुतवल्ली दरगाह शरीफ लंगर हाउस सैयद सादुद्दीन महमूद खादरी ने मरासिम में संदल माली अंजाम दिए। इस मौके पर मजलिस असम्बली कौसर मुहिउद्दीन, नाना नगर के कारपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और दूसरे मजलिसी कायदीन भी मौजूद थे। यहाँ ये बताना जरूरी होगा कि हकीम पेट हजरत निजामुद्दीन अलैहि रहमा के नाम से ही मौसूम है। उर्स की तकारीब में शहर के उलमा इकराम, मशाइखीन और सियासी कायदीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की और चादर गुल चढ़ाई। जूनियर गेस्ट लेक्चरर्स ने उनकी खिदमात बर्खास्त कर देने
से मुताल्लिक़ हुकूमत के फैसले के खिलाफ एहतजाज करते हुए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के रूबरू धरना दिया। उनका कहना था कि हुकूमत ने एक जियो जारी करते हुए उनकी जगह नए जूनियर लेक्चरर्स के तकर्रुर का ऐलान किया है, जो कि नामाकूल है। नए लेक्चरर्स जिनके पास कोई तजुर्बा ना हो किस तरह तालीम दे सकेंगे। मजीद ये कि तालीमी साल शुरू होकर 2 महीने हो गए, लेकिन नए लेक्चरर्स रुजू बेकार नहीं हुए। गेस्ट लेक्चरर्स गुज़श्ता कई बरस से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। इस तरह वो अपने रोज़गार से भी महरूम हो जाएंगे। सो द गेस्ट फैकल्टी जो कुछ इंटरमीडिएट में काम कर रहे थे, लास्ट 2-3 ईयर्स से जो लोग काम कर रहे हैं, दे आर मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एंड इस टाइम पूरा लोगों को निकाल के नया लोगों को रिक्रूट करना, वो भी स्ट्रिक्टली बेसिंग ऑन मार्क्स सिक्योर्ड बाय द कैंडिडेट्स इन पोस्ट ग्रेजुएशन बोल के ऑर्डर दिए। उससे नया बच्चा आते हैं मगर विदाउट एक्सपीरियंस दे कैन नॉट डिलीवर लेक्चर्स टू द स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स विल अंडरगो लॉस। नंबर 1। नंबर 2 क्या है बोले तो अब जून चले गए, जुलाई चले गए, अब 2 महीने जाने के बाद अगस्त में उन आके कब स्टार्ट करता, कब फिनिश करता, कैसा। अब प्राइवेट कॉलेज ही अप्रैल से चल रहे, अप्रैल मई जून जुलाई अब तक 50% कॉलेजेस में सिलेबस भी कंप्लीट हो गई। सो गवर्नमेंट क्या है बोले तो एजुकेशन को इम्पोर्टेंस दे रहा और एजुकेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश केसीआर सब कर रहा, मगर ऑफिसर्स जो कुछ डिसीजन ले रहे हैं उसके वजह से ये सब प्रॉब्लम्स हो रहा। इमीडिएटली मिनिस्टर और सीएम केसीआर साहब इसमें इंटरफेयर होके सिर्फ जो कुछ लोग 1300 इंटरमीडिएट में गेस्ट फैकल्टी काम कर रहे हैं सब लोगों को रिन्यूअल करना उनके मेरा डिमांड। अब A1 टाउनशिप चिविला और मोइनाबाद के दरमियान मेन रोड से 1.3 किलोमीटर आबादी से लगा हुआ तमाम डेवलपमेंट के साथ जहां आप अपना घर बना के रह सकते हैं, जो है बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ। 4 लाख में 100 गज का प्लॉट, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, फुटपाथ, बीटी रोड, कॉलेज, बस स्टॉप जैसी तमाम सहूलियतें दस्तयाब हैं। आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। मजीद मालूमात के लिए हमें कॉल करें। एड्रेस पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशर्स डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 7799603838। कोड़ंगल मंडल के रुद्राजम गांव में वाक़े उर्दू मीडियम स्कूल के मसाइल और उसकी हालत अज़ार से मुतालिक ज़िला कलेक्टर से नुमाइंदगी की गई है। मकामी मजलिस सदर सुल्तान बाहिउद्दीन की क़यादत में एक वफद ने, जिसमें मकामी अफराद और ज़िम्मेदार लोग भी शामिल थे, कलेक्टर से मुलाकात की और बताया कि स्कूल बुरी हालत में है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोड़ंगल सुल्तान बाहुद्दीन गुलशन कोड़ंगल मंडल के रुद्राराम गाँव में उर्दू मीडियम स्कूल न रहने की वजह से हम एक यादाश्त विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आयशा मसरत खानम साहिबा को एक यादाश्त पेश कर रहे हैं, जिसकी इल्तिजा कर रहे हैं कि उर्दू मीडियम की जल्द से जल्द क़याम अमल में लाया जाए रुद्रारम में, क्योंकि मासूम बच्चों को यहाँ पे रुद्रारम के अंदर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और वहाँ पे कुछ सहूलतें नहीं है। वो अंगड़ेचूर जैसे मुकामात पर जाकर उर्दू मीडियम तालीम हासिल करना पड़ रहा है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द उर्दू मीडियम का क़याम अमल में लाया जाए। मरकजी हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लिया है। हुकूमत ने रीजनल रूरल बैंकों में भर्ती के लिए होने वाले तहरीरी इम्तिहानात को 13 इलाकाई ज़बानों में मुनक़िद कराने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि इन 13 ज़बानों में उर्दू ज़बान को भी शामिल किया गया है। इस बात का ऐलान मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में किया। निर्मला सीतारमन ने कहा कि बैंकों में होने वाली भर्तियों में मुकामी उम्मीदवारों को मौका फराहम करने के मकसद से हुकूमत ने हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू समेत 13 इलाकाई ज़बानों में तहरीरी इम्तिहानात मुनक़िद करने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के तहत रीजनल रूरल बैंकों में भर्ती के लिए इम्तिहानात मुनक़िद किए जाते हैं। याद रहे कि इससे पहले सोशल मीडिया पर रीजनल रूरल बैंकों में इम्तिहानात कराने का मुतालबा किया गया था और ये मांग ट्विटर पे ट्रेंड कर रही थी। ताहम अब तक हुकूमत ने इससे मुतालिक कोई फैसला नहीं किया था। Total staff strength of around 90,000 employees. Institute of Banking Personnel Selection conducts common recruitment process (CRP) for recruitment of officers scale 1, 2, and 3, and office assistants multipurpose in the RRBs on an all-India basis in English and in Hindi medium. In the present system, candidates educated in local languages are at a disadvantage due to the medium of examination. Various references and representations have also been made and received suggesting inter alia
to conduct the recruitment examination for RRBs in regional languages. The functioning of RRBs is state-specific and rural-focused, and therefore, knowledge of the local language of that particular state or region would help the candidate in performing his duties effectively. Thus, with a view to provide a level playing field and to expand employment possibilities for local youth, it has been decided that the examination for direct recruitment of officers scale 1 and office assistant multipurpose in RRBs will be conducted in 13 regional languages in addition to English and Hindi. I'll just read it out one. These 13 regional languages are Assamese, Bengali, Gujarati, Kannada, Konkani, Malayalam, Manipuri, Marathi, Oriya, Punjabi, Tamil, Telugu and Urdu. The candidates will, in addition to English and Hindi, also have the option to choose the regional language of the state that they have opted for from among the above languages as their medium of examination. This change shall be implemented from the mains examination of CRP RRB 8, which is 2019 this year onwards. Thank you. Item number. जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने आज निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के स्पेशल ऑफिसर के जायद ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। याद रहे कि निजामाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मियाद 2 जुलाई को खत्म हो गई, जिसके बाद स्पेशल ऑफिसर का तकर्रुर नागुज़ीर हो गया था। जिले मेरसल के कीसरा में आउटर रिंग रोड पर एक गुड्स ट्रक का टायर फट जाने के नतीजे में 2 अफराद हलाक हो गए, इनमें खातून भी शामिल है। कीसरा पुलिस ने मकाम हादसा पर पहुंचकर नाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और मसरूफ तहकीकात है। कांग्रेस आई के सबकदोश सदर और रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी आज मुंबई की अदालत में पेश हुए, जहां उन्होंने खुद को बेकसूर करार दिया और कहा कि वो फिरकापरस्त नजरियात का 10 गुना कुव्वत के साथ मुकाबला करेंगे। आरएसएस के कारकुन ने खातून सहाफी गौरी लंकेश के कत्ल में आरएसएस को मुलविस करने पर राहुल गांधी के खिलाफ इज्जत का मुकदमा दायर किया था। सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचुरी भी आज अदालत में हाजिर हुए, उन्हें भी इस केस में नोटिस जारी की गई थी। मुंजा गांव के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने राहुल गांधी को जमानत पर रिहा कर दिया, ताहम सोनिया गांधी और सीपीआईएम के खिलाफ शिकायत को खारिज कर दिया और कहा कि उनके एक शख्सी ख्यालात हो सकते हैं और उन्हें इस केस में माखूज नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी मुंबई के पड़ोसी शहर भिवंडी में भी ऐसे एक मुकदमे का सामना कर रहे हैं, जहां एक आरएसएस के कारकुन ने महात्मा गांधी के कत्ल के लिए आरएसएस को जिम्मेदार ठहराने राहुल गांधी के रिमार्क पर मुकदमा ठोक दिया है। राहुल गांधी पार्टी के सीनियर कायदीन मलिक अर्जुन खड़गे और मलिंद देवरा के हमरा अदालत को पहुंचे थे। अदालत के बाहर हजारों कांग्रेसी कारकुन जमा थे जो राहुल गांधी जिंदाबाद और राहुल गांधी इस्तीफा वापस लो के नारे लगा रहे थे। पुलिस ने भी अदालत और उसके अतराफ अकनाफ में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए थे।
गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के इलाके में एक मकान से 30 साल नामालूम शख्स की नाश दस्तियाब हुई, जो अपने कमरे में मुर्दा पाया गया था। मकामी आवाम ने बदबू और ताफुन फैलने पर पुलिस को इत्तला दी थी। डिप्टी कमिश्नर पुलिस मादापुर वेंकटेश्वरा ने मकान का मुआयना किया। इंस्पेक्टर कोकटपल्ली लक्ष्मी नारायण ने मुकदमा दर्ज किया और बताया कि आगे की तहकीकात जारी हैं। PS పరిధిలోని కళామందిర్ రోడ్ BNR బ్యాక్ సైడ్ ఒక పాడుబడ్డ రూమ్ ఉంది। ఆ రూమ్లో ఒక 25 to 30 ఇయర్స్ వయసు గల ఒక మగ వ్యక్తి పడి ఉన్న యొక్క ఫిర్యాదు రావడం జరిగింది। దాన్ని బ్రేక్ చేసుకొని మేము రాగా ఒక వ్యక్తి తలకు గాయాలతో పడి ఉన్నాడు। దాన్ని చూడగా ఇంకా గుర్తులేని వ్యక్తి ఉన్నాడు। వయసు అందాజు 25 నుంచి 30 సంవత్సరాల వయసు ఉంది। దీనిపై మేము కేసు నమోదు చేసి మొదలు ఐడెంటిఫై చేసి అదేవిధంగా ఎవరు కొట్టినది వెరిఫై చేసి దాని ఆధారంగా దర్యాప్తు చేయడం జరుగుతుంది। उत्तर प्रदेश के मुतनाज़िया चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने महकमे पुलिस में करप्शन के खात्मे के लिए एक मुहिम छेड़ दी है, जिसके तहत महकमे के बदउन्वान और रिश्वतखोर पुलिस अहदेदारों की छुट्टी कर दी जाएगी। उन्होंने या तो वक्त से पहले रजाकाराना तौर पर सबकदोशी के लिए कहा जाएगा या फिर उन्हें सीधे बरतरफ कर दिया जाएगा। डायरेक्टर जनरल पुलिस OP सिंह ने भी चीफ मिनिस्टर के इस मंसूबे की तौसीक कर दी है और कहा कि IPS अहदेदारों के बशमूल तमाम मरतबे के अहदेदारों के बारे में मालूमात इकट्ठा की जा रही हैं और उन्हें कमेटी से रुजू किया जाएगा, जो छुट्टी कर दिए जाने वाले अहदेदारों की फहरिस्त तैयार करेगी। उन्होंने बताया कि यह काम अंदरून 1 माह मुकम्मल कर लिया जाएगा। इसी दौरान रियासत के काबीनी वजीर श्रीकांत शर्मा ने बताया कि योगी सरकार ने बदउनवानी को बर्दाश्त न करने का फैसला लिया है और ये इकदाम उसी सिलसिले की कड़ी है। रियासत की हुकूमत ने गुज़श्ता 2 साल के दौरान 600 बदउनवान सरकारी मुलाजिमीन को सबकदोश कर दिया है, जिनमें 169 महकमे पुलिस से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि 25 का ताल्लुक़ महकमे पंचायत राज से है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।